first of all, we'll start the doubts of home assignment. So whatever your first, let me know the question numbers, then we'll start. Okay. So you said I'm writing the question numbers, which are, then we'll start discussing. First, you said question number 6. Okay. Question number 8. 10, 11, 13. Okay, 14. 15 and 16 also. Okay, fine. Other than this, और कोई सवाल बच रहा है? Okay, so first we start with home assignment 1, question number 6. In question number 6, it is given that we have a concentrated nitric acid used in the laboratory work. Its concentration is 68% nitric acid by mass, and you have to calculate the molarity. So in the question, it's given 68% by mass HNO3, and you have to find out the molarity from here. You just apply the formula. Since 100 gram of solution contains 68 gram of HNO3, therefore now density is given for the solution, so mass में density से divide करेंगे तो volume आ जाएगा. So this is 100 divided by 1.508 ml. Solution contains 68 by 63 moles of HNO3, right? अब आपको पता है कि 1000 ml में जितने moles होते हैं, that is your molarity. So therefore 1000 ml solution contains how much? 68 by 63 into 1000 by 100 into 1.508. This will be molarity. आप चाहो तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हो. मैंने बताया था molarity is equal to weight per se into 10 upon m1 into d. डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? Now question number 8. In question number 8, it is given that number of how many moles of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaCO3. तो देखो Na2CO3 और NaCO3 दोनों बेस की तरह काम करेंगे. तो अगर Na2CO3 HCl से रिएक्ट करेगा तो it will form NaCl, water and CO2. And then NaCO3 will react with 1 mole of HCl will form again NaCl, water and CO2. So if you take A moles of, let's say, Na2CO3, so it will react with 2 mLs of HCl. If I take A moles of NaCO3, then it will react with A moles of HCl. और आपको टोटल मास ऑफ Na2CO3 और NaCO3 1 दिया है, तो सिंपली आप मास का फॉर्मूला लगाओ तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास 106 प्लस अगेन मोल्स ऑफ NaCO3 इनटू मॉलिक्यूलर मास 84. दिस इज गिवन टू यू 1. अगर ये 1 है तो आपको पता चल गया कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड होगा वो 3A के इक्वल होगा. सो पहले इक्वेशन से A निकाल के हमें मोल्स ऑफ HCl पता चल गया. अब मोल्स ऑफ HCl निकालने का एक और मेथड है. यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला. Let volume of HCl used is equal to VML. And we know the formula, number of moles is equal to molarity into volume in liters. And you got number of moles is equal to 3A. दूसरे फॉर्म में इसकी molarity 0.1 दे रखी, वॉल्यूम VML 1 है. सो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई करो, यहाँ से सॉल्व करके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लोगे. ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. Is that clear? Next you ask question number 10. In question number 10, it's given an antifreeze solution is prepared from 226.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molarity of the solution, and then density is given. From that you have to calculate the molarity. So as we all know that molarity is equal to number of moles of solute upon mass of solvent into 1000
Is that okay? So mass is given 222.6 gram. Molecular mass निकाला किसी ने? Okay, 62. So 62 molecular mass हो गया. Mass of solvent 200 ग्राम दिया है, into 1000 करेंगे तो इससे मोलालिटी आ जाएगा. एंड देन मैंने आपको मोलालिटी का कन्वर्जन सिखाया, तो एक बार मोलालिटी आ गई, देन मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएगा, मोलालिटी इनटू डेंसिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m इनटू m1. m1 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. फॉर्मूला याद है ना? मोलालिटी इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 प्लस m इनटू m1. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला विल गेट मोलालिटी. कर लोगे ना कैलकुलेट? सो सिंपल, पहले मोलालिटी निकाला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 से. मोलालिटी आया, मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 222.6 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाला इथिलीन ग्लाइकोल 62, सो डिवाइड करा, मोल्स आया. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट्स 200 गिवन है, 1000 से मल्टीप्लाई करा, सो यू गॉट मोलारिटी. एंड देन मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 प्लस m इनटू m1. और आपको डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, मोलालिटी ऑलरेडी आपने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, तो आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? And then the next question is question number 11. Next question we have to solve is question number 11. Okay. So in question number 11, it's given a sample of drinking water was severely contaminated with a chloroform and supposed to be the carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. तो लेवल ऑफ कंटेमिनेशन 15 ppm by mass दिया, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 15 ppm by mass. And from this you have to find out first percentage by mass and then molality. These are the two information जो आपको कैलकुलेट करना है. So let me start with that. तो सबसे पहले 15 ppm by mass है, तो उसका हम इनडायरेक्ट मतलब क्या लिख सकते हैं? 10 पास 6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत लोअर है, तो हम 10 पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट लिखें या 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिखें, इट डजंट मेक डिफरेंस, बिकॉज़ 10 पावर 6 में 15 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट्स में बहुत फर्क नहीं पड़ता है. सो पीपीएम इज बाय मास, तो वी आर राइटिंग 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो अगर हम यहाँ से परसेंटेज बाय मास लिखेंगे, सो दिस बिकम्स 15 अपॉन 10 टू द पावर 6 प्लस 15 लिखना चाहिए आइडली, बट दैट 15 इज नेग्लिजिबल, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू 100 करेंगे. तो दिस इज 1.5 इनटू 10 पावर -3. ये आपका सबसे पहला रिजल्ट आ गया मास परसेंट. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है अभी तो बताइए. सीधा इंटरप्रिटेशन है, बस पीपीएम को हमने बाय मास में कन्वर्ट किया. ओके ना? ठीक. इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि मोलालिटी निकालना है सेम सॉल्यूशन का. तो मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट. अब आपको क्या करना है? मास ऑफ सॉल्वेंट से इसी को रिलेट करना है. तो नेक्स्ट पार्ट में अगर हम इसकी मोलालिटी लिखेंगे, तो मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solvent into 1000. So as per information, mass is given 15 gram, molecular mass of chloroform is 119.5. आप चाहो तो रफ कैलकुलेशन में 120 भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील. एग्जैक्ट लिखना है तो 119.5 into 10 to the power 6 into 1000 करेंगे. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका मोलालिटी कैलकुलेट हो जाएगा. कर लो क्या करेंगे? Perfect. Next question you asked is question number 13. Okay, so question number 13, it is given, calculate the solubility product of copper sulfide. If the solubility product of copper sulfide is 6 into 10 power minus 16, calculate the maximum molarity of copper sulfide. तो आपको solubility निकालना है simply. So first you will take copper sulfide solid. तो ये water में dissolve होगा, तो it will form copper 2 plus aqueous plus sulfide ion aqueous, right? अब सॉल्युबिलिटी है, अगर हम S मोल्स पर लीटर अज्यूम कर लें, तो कॉपर 2 प्लस कंसंट्रेशन भी S हो जाएगा, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन भी S हो जाएगा. सो Ksp विल बी सिंपली इक्वल टू S स्क्वायर और सॉल्युबिलिटी इक्वल टू रूट ओवर Ksp, एंड दिस कंसंट्रेशन विल कम आउट टू बी इन मोल्स पर लीटर यूनिट. एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है 6 into 10 to the power minus 16. इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर मोल्स पर लीटर में आंसर आ जाएगा. ठीक है. Then comes question number 14.
क्लियर है ना? सॉल्युबिलिटी में KSP चाहिए होता है, तो अगर हमें कॉपर सल्फाइड दिया है, डिसॉल्व होने के बाद कॉपर 2 प्लस सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, सॉल्युबिलिटी दोनों के लिए S मोल्स पर लीटर है, तो टेक्निकली आपका जो सॉल्युबिलिटी बनेगा वो KSP इक्वल टू S स्क्वायर लिखेंगे और उससे सॉल्युबिलिटी रूट ओवर KSP आएगा, आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। In question number 14 is given calculate the mass percentage of aspirin in acetonitrile, तो यहाँ पे एस्पिरिन आपका सोल्यूट हो गया और एसिटोनाइट्राइल जो है वो सॉल्वेंट हो गया। When 6.5 ग्राम of aspirin is dissolved in 450 ग्राम of CH3Cl, आपसे पूछा है मास परसेंटेज, तो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्लियर है आपको? तो परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू हाउ मच मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी आपको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है एक्चुअली में, तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, so this combinedly becomes mass of solution into 100। तो क्वेश्चन में डेटा देवन है 6.5 ग्राम सोल्यूट है, 450 ग्राम सॉल्वेंट है, 200 करिएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर परसेंटेज बाय मास। क्लियर है यहाँ तक? ओके ना? परफेक्ट। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। For question number 15, it is given nalfurine C19H22NO3 similar to the morphine is used to combat withdrawal symptoms of the narcotic users. Dose of the narcotic generally given is 1.5 milligram. Calculate the mass of 1.5 to 10 power minus 3 m aqueous solution required for the above dose. अच्छा, तो देखो आपको सोल्यूशन की मोलालिटी दे रखी है, जिससे आपको ये निकालना है कि कितना अमाउंट डोज दी है, सो दैट उस पर्सन के अंदर 1.5 मिलीग्राम पहुंच जाना चाहिए। तो एज पर द क्वेश्चन मोलालिटी इज गिवन 1.5 into 10 power minus 3। अब आपको पता है मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकाला है किसी ने इसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस, तो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ C19H21NO3 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। It comes out to be 311। Okay, perfect. So molecular mass of the substance is 311, ये गिवन है हमें। अब हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका W ग्राम में ले लिया, so you write that W ग्राम of solvent is taken, तो अगर हमने W ग्राम सॉल्वेंट किया तो भाई सिंपल आपको मोलारिटी गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है, उससे हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। So you will simply write down that moles of solute will be equal to 1.5 into 10 power minus 3 मोलालिटी दी गई है, इसे मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड बाय 1000, ये आपके मोल्स आ गए। और मोल्स में अगर हम फर्दर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मास आ जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूट अगर निकालेंगे हम इसी इंफॉर्मेशन से, सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द solvent solute which is given to you 311। Is that okay? So this becomes mass of solute. Now you have to calculate W, and mass of solute is given to you 1.5 gram, 1.5 milligram. So this is 1.5 into 10 power minus 3 grams. So दोनों मास को इक्वल करके हम W अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो this comes out to be 1000 by 311 grams। Okay? देखो आगे सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर ऐसे 3.2 के आसपास आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। Now the last question, question number 16. In question number 16, it is given that calculate the amount of benzoic acid required to prepare 250 ml of 0.15 m solution of methanol. So आप क्या कर रहे हो, benzoic acid को methanol में dissolve कराना है। So benzoic acid is solute, methanol is solvent, और molarity given है अपने को 0.15। As per the formula, molarity is equal to number of, हमें molarity का formula लिखना है, so molarity is equal to number of moles of solute, and your solute is benzoic acid C6H5COH divided by volume of the solution in milliliter।
into 1000. So molarity given 0.5, mass of solute let's say मान लेते हैं x ग्राम, molecular mass benzoic acid का कितना आ रहा है 122, perfect, divided by mass of solvent 250 into 1000. इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो यहाँ से mass of benzoic acid C6H5COH, तो x हमने माना है उसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके 0.15 into 122 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, इसके बाद किसी ने होम असाइनमेंट 1 भी सॉल्व कर लिया है, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, करा है सॉल्व? ओके, नहीं करा है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप होम असाइनमेंट नंबर 1 भी कंप्लीट करिएगा। अभी हम लोग आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ लिया था, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। सो वी आर स्टडीइंग अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, और उसके मैंने दो पैरामीटर्स आपको पहले ही डिस्कस किए हुए। सो सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, इसके दो पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वन वाज नेचर ऑफ गैस। तो अगर हमारी कोई भी गैस ऐसी है जो किसी भी सॉल्वेंट से रिएक्ट कर सकती है, तो ऐसे गैसेस के लिए मैंने बताया था एक्सेप्शनली हाई सॉल्युबिलिटी आती है। सो गैस कैन रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, इट शोज एक्सेप्शनली हाई सॉल्युबिलिटी, एक पैरामीटर बताया था। दूसरा पैरामीटर नेचर ऑफ सॉल्वेंट बताया था, इसमें आपको सिंपली रूल बताया था लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तीसरा रूल लिखना है, दिस इज टेम्परेचर। Write down the next factor, this is temperature. So write down solubility of gases in liquids. Solubility of gases in liquids. Solubility of gases in liquids decreases on increasing temperature. Solubility of gases in liquids decreases on increasing temperature. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में डिक्रीज कर जाती है। अब इसको अगर याद रखना है तो सोडा बॉटल या कोक बॉटल के एग्जांपल से याद रख सकते हो। जब तक बॉटल चिल्ड रखते हैं तब तक उसमें गैस ज़्यादा डिसॉल्व रहती है, जैसे उसको हीट अप कर देंगे तो गैस क्या करेगी, एस्केप कर जाएगी। अब अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट इज कि हमारी जो गैसियस स्टेट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का स्टेट ऑफ मैटर है। गैसियस स्टेट का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब अगर आपने इसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी और सडनली इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो उसको लिक्विड में ट्रैप कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो सर्टेनली सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करती है, बिकॉज अगर आप टेम्परेचर एनहांस करोगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। गैस की काइनेटिक एनर्जी पहले ही बहुत ज्यादा होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में पहले ही कम होती है, और अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। सो इट मींस इट विल डेफिनेटली एस्केप, और अगर एस्केप कर जाएगी तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करेगी। क्लियर है टेम्परेचर का इफेक्ट? टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट पैरामीटर इज प्रेशर। तो प्रेशर के केस में आपको तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज प्रेशर इंक्रीज करने से गैस को सॉल्वेंट में ट्रैप कर पाना पॉसिबल हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सो राइट डाउन solubility of gases in liquids. Solubility of gases in liquids increases on increasing pressure. Solubility of gases in liquids increases on increasing pressure. Solubility of gases in liquids increases on increasing pressure. और गैस की सॉल्युबिलिटी के आपको चारों फैक्टर क्लियर हो गए। अगर गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्युबिलिटी एक्सेप्शनली हाई रहेगी। सॉल्वेंट और सोल्यूट का नेचर सेम हुआ, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली कैटेगरी। पोलर गैसेस मोर सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर गैसेस मोर सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये सेकंड पैरामीटर है, बट इसके पहले इंश्योर करना होता है कि अगर गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर रही है, वो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों ही कंडीशन में सॉल्युबिलिटी एक्सेप्शनली इंक्रीज करेगी।
टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी और प्रेशर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताइए। ओके परफेक्ट। इसके बाद हम लोग देखो गैसेस की सॉलिबिलिटी के लॉ पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। सो राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म, हेनरीज लॉ। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो फर्स्ट यू राइट डाउन द स्टेटमेंट हेनरीज लॉ। So write down, if we measure solubility of gases in terms of mole fraction, if we measure solubility of gases in liquid in terms of mole fraction, if we measure solubility of gases in liquids in terms of mole fraction, then partial pressure of the gas, in vapor phase is, then partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the solubility of the gas. I said, if we measure solubility of the gas in liquid in terms of mole fraction, then partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to solubility of the gas. तो अगर हमने किसी भी गैस की solubility को मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिपोर्ट करा, so this becomes number of moles of gas divided by number of moles of gas plus number of moles of solvent. ठीक है, ये हमने सॉल्युबिलिटी निकाली। पहले मोल फ्रैक्शन का हमें ध्यान से देखना है, गैस के मोल्स वो वाले लिखते हैं जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रखते हैं। क्लियर? तो हमारे हेनरीज लॉ के हिसाब से गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएंगे तो एक नया कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे KH, जिसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। सो दिस इज योर हेनरीज कांस्टेंट। ये आपकी सॉल्युबिलिटी हो गई, ठीक है। और P जो है हमारा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज हो गया। पार्शियल प्रेशर of gas in vapor phase. Partial pressure of the gas in vapor phase. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? प्रोसेस समझ में आ गया? अगर हम किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसी कंडीशन में अगर हम उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके सॉल्युबिलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएंगे तो वी विल गेट अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बाद में बताऊंगा। और P जो हमने लिखा है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज में, तो P इक्वल टू VH into X होता है। इससे हम लोग गैस की सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, गिवन टेंपरेचर। इज दैट क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस measured in terms of mole fraction, it is directly proportional to partial pressure of the vapor phase. यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो इसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। लिखे क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिखिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। So write out the Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas. The Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas. The Henry's law for the Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas in water. The Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10 power 5 atm. The Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10 to the power 5 atm. The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. Then find the number of moles of nitrogen from air. Then find the number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin. Then find the number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure. ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन में KH की वैल्यू दे रखी है 1 into 10 to the power 5. मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर गिवन है अपने को 0.8. यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो हम लोग लिखते हैं. जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है दिस इज एक्चुअली मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. और ध्यान देना है कि यहाँ जो मोल फ्रैक्शन लिखना है वो वेपर फेज वाला लिखना है, यानी कि जो गैस में है वो टर्म यूज करना है. सो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एयर में मोल फ्रैक्शन 0.8 दिया है, टोटल प्रेशर 5 atm दिया है, सो दिस कम्स आउट टू बी 4 atm. ये समझ आया? गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो इट इज मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन वो लिखना है जो एयर में है, गैसियस फेज वाला. इज दैट ओके? मोल फ्रैक्शन वो लिखना है जो गैसियस फेज में. क्लियर है यहाँ तक सबको? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एयर विल बी 0.8 into 5, दिस बिकम्स 4 atm. ठीक है, इसके बाद सिंपली सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर अगर कैलकुलेट करेंगे, solubility of nitrogen in water will be calculated in terms of mole fraction. So this is moles of nitrogen upon moles of nitrogen plus moles of water. यहाँ पे जो small n हमने लिया है that is moles of nitrogen dissolved in 10 moles of water. ये क्वेश्चन में पूछा गया हमसे. अब आप हेनरीज लॉ अप्लाई कर दो. सो फ्रॉम हेनरीज लॉ P is equal to KH into mole fraction. P कितना दिया है 4 atm, KH is 1 into 10 to the power 5 और मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1 plus 10. अब आप इंफॉर्मेशन से देख के समझ सकते हो कि जो मोल्स हैं स्मॉल n वो 10 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है. तो फ्रॉम हियर इफ आई कैट स्मॉल n तो इट इज 4 into 10 to the power minus 4 moles. ये आपका आंसर होगा. क्लियर है यहाँ तक? जो कंफ्यूजन हो तो बताइए फटाफट. बस में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है गैस में, अगर हमें किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो जो पार्शियल प्रेशर निकालना है उसमें मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का यूज करना है, और जो सॉल्युबिलिटी लिखनी है उसमें मोल फ्रैक्शन वो लिखना है जो वाटर के अंदर है या सॉल्वेंट के अंदर है. क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? अब देखो हमें
में हेनरीज लॉ के बेसिकली एप्लीकेशन सीखते हैं. तो नेक्स्ट हम लिखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. तो बेसिकली 4 मेजर एप्लीकेशन सीखते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. करें स्टार्ट. थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, सो राइट डाउन वन बाय वन. एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. सो फर्स्ट एप्लीकेशन में लिखो to increase the solubility of carbon dioxide. To increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks or soda water. पहला एप्लीकेशन लिख रहे हैं. To increase the solubility of carbon dioxide in soft drink and soda water, the bottles are sealed under high pressure and low temperature. The bottles are sealed under high pressure and low temperature. Bottles are sealed under high pressure and low temperature. समझ में आएगा. तो प्रेशर हाई रखना है, टेम्परेचर लो रखना है, तो अपने आप सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी. तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो इंक्रीज करेगी अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और प्रेशर इंक्रीज करेंगे. तो अगर हमें सोडा बॉटल और कोक बॉटल के अंदर या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट हायर करना है, तो उसका सिंपल लॉजिक है, प्रेशर हाई करना होगा और टेम्परेचर लोअर डाउन करना होगा. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज करने से, प्रेशर इंक्रीज करने से. इज दैट क्लियर? दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो माउंटेनियर्स के केस में अप्लाई होता है. माउंटेनियर्स जब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है. एक्सटर्नल प्रेशर होने की वजह से जो गैसेज है या जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो ब्लड के अंदर कम होने लगेगी. अगर ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होने लगेगी. तो इससे क्या होता है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए वीकनेस फील होने लगती है, उनके क्लियरली थॉट थिंक करने की जो प्रोसेस है वीक होने लगती है. टेक्निकल टर्म में इसको हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं. तो यू राइट डाउन दिस सेकंड एप्लीकेशन. Write down. At high altitudes, the partial pressure of oxygen. At high altitudes, the partial pressure of oxygen. At high altitudes, the partial pressure of oxygen. At high altitudes, the partial pressure of oxygen is less than that of at the ground level. At high altitudes, the partial pressure of oxygen is less than that of at the ground level. तो देखो पार्शियल प्रेशर गैस का कम हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. This leads to low blood oxygen. This leads to low blood oxygen. So check करो, I said at high altitudes the partial pressure of oxygen is lesser than that of at the ground level. This leads to the low blood oxygen, causes climbers to become weak, causes climbers to become weak and unable to think clearly, causes climbers to become weak and unable to think clearly, and unable to think clearly. Symptoms of a condition known as anoxia. तो हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम हुआ तो उससे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई. तो
ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हुआ तो उसके अंदर वीकनेस आई और उसकी थिंक करने की प्रॉपर्टी जो है वो वीक होने लगी। इसको हम लोग मेडिकल सिम्टम टर्म में बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, तो ये सिम्टम्स ऑफ एनॉक्सिया होता है। वीकनेस आने लगेगी, प्रॉपरली आदमी सोच नहीं पाएगा, तो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ लो ब्लड ऑक्सीजन इन द ब्लड। और ऐसा किस वजह से हुआ? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर डिक्रीज कर गया, तो सॉल्युबिलिटी अपने आप कम कर जाएगी, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करेगा। ठीक है, नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू स्कूबा डाइवर्स। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनको बेसिकली क्या होता है कि ओशन के अंदर जाना होता है, और ओशन के अंदर बहुत प्रेशर वेरिएशन होता जाएगा, जितनी डेप्थ में जाते जाएंगे उतना हाई प्रेशर होता जाएगा। अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है, और जब वो सरफेस की तरफ आते हैं तो उससे क्या होता है, फिर से जो नाइट्रोजन डिसॉल्व थी वो बाहर आने लगेगी, प्रेशर कम हो गया, तो नाइट्रोजन बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलनी शुरू होती है, और कई बार ये बॉडी में ट्रैप होने लगती है, तो उसकी वजह से बहुत हैवी पेन होता है, समटाइम्स इट मे लीड टू डेथ। और ये एक टेक्निकल सिम्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। समझ में आया? तो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, उनके केस में क्या होता है कि जब वो हाई प्रेशर ओशन के अंदर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वाटर का प्रेशर और अप्लाई होगा, तो हाई प्रेशर सिचुएशन में पहुंचेंगे। उस हाई प्रेशर सिचुएशन में क्या होगा कि जो उनके साथ सिलेंडर है उसमें जो गैस फिल्ड है, उससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ेगी। ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी तो नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो रिक्वायर्ड है, बट नाइट्रोजन सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो ब्लड में बढ़ेगा, और नाइट्रोजन आप जानते हो पॉइजनस होता है। और एट द सेम टाइम जब नाइट्रोजन जो है जब सरफेस की तरफ मूव करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन बबल्स के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट होगी। तो कई बार ये ट्रैप कर जाती है, और ट्रैपिंग होने की वजह से कई बार हैवी पेन की सिचुएशन आती है, और इवन इट मे लीड टू डेथ। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को अगर हमें अवॉइड करना होता है तो उससे क्या करा जाता है, जो स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर्स होते हैं उनमें हम लोग नाइट्रोजन को डाइल्यूट कर देते हैं और उसमें हीलियम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? और इस प्रॉब्लम को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं बेल्ट्स। क्लियर है? लिखें ये बात। So write down, to avoid the problem of bends for scuba divers. To avoid the problem of bends for scuba divers, to avoid the problem of bends for the scuba divers, and to avoid the toxic effect of high concentration of nitrogen in blood, to avoid the problem of bends and the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood of scuba divers, to avoid the problem of bends and the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood of scuba divers, the tank used by the scuba divers, the tank used by the scuba divers, the tank used by scuba divers are filled with air, are filled with air, are filled with air diluted with helium, are filled with air diluted with helium. एक्चुअल कॉम्पोजिशन लिखना है तो 11.7% हीलियम रखते हैं इसमें, 56.2% ऑक्सीजन और 56.2% नाइट्रोजन एंड अप्रॉक्सीमेटली 32.1% ऑक्सीजन। ये सिलेंडर का कॉम्पोजिशन होता है। मेजरली आप इसमें ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन का परसेंटेज अराउंड 80% होता है एयर में, उसको डिक्रीज करा गया है। ऑक्सीजन का परसेंटेज स्लाइड एनहांस किया है, बट मेजरली उसको हीलियम से कॉम्पनसेट किया है। हीलियम क्योंकि इनर्ट गैस है और उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये इसका टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं आएगा और सॉल्युबिलिटी भी रिलेटिवली डिक्रीज कर जाएगी, तो बैंड्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और नाइट्रोजन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो भी ऑलमोस्ट नलिफाई हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? Perfect. Now the fourth application is this is for aquatic species. Aquatic species में ये चीज ऑब्जर्व करी गई है कि वो मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में रादर देन द हॉट वाटर, और उसका भी सिंपल एक ही लॉजिक है, कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। तो लास्ट एप्लीकेशन लिखेंगे aquatic species are more aquatic species are more comfortable aquatic species are more comfortable aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water. Rather than in warm water. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोल्ड वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मोर होती है। तो ये पॉइंट लिख लो। In cold water, dissolved oxygen content is higher. In cold water, dissolved oxygen content is higher. ठीक है? बस लास्ट में एक पॉइंट और लिखना है, जो हेनरीज कांस्टेंट है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, दिस आल्सो यू नोट डाउन। नेक्स्ट हम लिखेंगे हेनरीज कांस्टेंट। अब जो हेनरीज कांस्टेंट है एक्चुअली में प्रॉपर्टी ऑफ द गैस होता है और ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है। हेनरीज कांस्टेंट जो है वो क्या है? एक तो गैसेस की प्रॉपर्टी है, दूसरा ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। तो दो मेजर फैक्टर्स हैं जिस पे ये चीज डिपेंड करेगी। तो एक एक करके लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले तो पहले पॉइंट में लिखिए हेनरीज कांस्टेंट is more for the gas with a lower solubility at the given pressure. Henry's constant is more for the gas with lower solubility at a given pressure. तो अगर आप एक given pressure में Henry's constant कंपेयर करेंगे तो गैस with lower solubility, मतलब जो गैस कम डिसॉल्व हो रही होगी उसके लिए हायर वैल्यू ऑफ KH आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो गैस with which has lower solubility will have higher KH। और दूसरे पैरामीटर में लिखो, अगर किसी एक गिवन गैस के लिए आप KH वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH इंक्रीज करेगा, तो जनरली सॉल्युबिलिटी कम कर जाएगी। तो सेकंड पॉइंट पे लिखो फॉर अ गिवन गैस KH value increases for a given gas KH value increases for a given gas KH value increases on increasing temperature। For a given gas KH value increases on increasing temperature। So for a given gas on increasing temperature आपकी KH वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। So this completes your solutions of gases and liquids। अब हम लोग तीसरे टाइप का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स। सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स। अगर सपोज करो हमने एक लिक्विड ए को एक लिक्विड बी में डिसॉल्व करा के एक सॉल्यूशन बनाया, हमने एक लिक्विड ए को एक लिक्विड बी में डिसॉल्व करा के सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन तीन तरीके से बन सकता है। आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था
तो जो सोल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब आप समझ रहे हैं, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। अगर हमने एक लिक्विड ए को एक लिक्विड बी में डिसॉल्व करा के सोल्यूशन बनाया, तो पहले जो प्योर लिक्विड ए था उसमें ए की सराउंडिंग में ए था, जो प्योर लिक्विड बी था उसमें बी की सराउंडिंग में बी था। जब सोल्यूशन बना तो ए की सराउंडिंग में बी आ गया और बी की सराउंडिंग में ए आ गया। जब सोल्यूशन बना तो ए की सराउंडिंग में बी और बी की सराउंडिंग में ए आ जाएगा, राइट। तो उसका मतलब सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले ए का ए के साथ जो इंटरेक्शन उसे ब्रेक करना पड़ा होगा, और बी का बी के साथ जो इंटरेक्शन उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और बाद में ए से बी का जब इंटरेक्शन क्रिएट होगा तो उस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी। So first we are providing energy for breaking the interaction of A with A, B with B, and then energy is released due to the interaction of A with B. एक पार्ट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, दूसरे पार्ट में एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी एग्जैक्टली उतनी एनर्जी रिलीज हो जाए, जितनी एनर्जी आपने प्रोवाइड करी एग्जैक्टली उतनी रिलीज हो जाए, तो डेल्टा एच वैल्यू 0। दूसरी पॉसिबिलिटी डेल्टा एच पॉजिटिव यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी डेल्टा एच नेगेटिव दैट मींस रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। बोला दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इसी समझ आ रही है। और यहाँ हम लोग जो डेल्टा एच लिख रहे हैं ये बेसिकली एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। तो देखो आपने जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी एग्जैक्टली उतनी एनर्जी रिलीज हो गई, तो डेल्टा एच 0। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है हम लोग अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो व्हेन डेल्टा एच इज 0 इट इज आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव को हम लोग कंबाइंडली नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब जब अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड ज्यादा है, रिलीज कम है, तो नेट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, तो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। So this is non-ideal solution, positive deviation. Non-ideal solution, positive deviation. And this one is non-ideal solution, negative deviation. पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है, ये भी आगे चैप्टर में आपको सिखाऊंगा, हम लोग राउट लॉ पढ़ेंगे तब इस चीज को डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको बस प्रोसेस समझना है कि अगर हमने एक लिक्विड ए को एक लिक्विड बी में डिसॉल्व कराया, तो पहले ए से ए का इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करी, फिर नेक्स्ट स्टेप में बी और बी का इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करी। ठीक है, दो स्टेप में आपने एनर्जी प्रोवाइड करी। इसके बाद इंटरेक्शन ऑफ ए विद बी से एनर्जी रिलीज हुई, इंटरेक्शन ऑफ ए विद ए के लिए आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, इंटरेक्शन ऑफ बी विद बी के लिए भी आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, तो इंटरेक्शन ऑफ ए विद बी से एनर्जी रिलीज हुई। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए तीन पॉसिबल कंडीशंस हो सकती है कि आपने जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी एग्जैक्टली उतनी रिलीज होगी, आइडियल सॉल्यूशन। जितनी एनर्जी आपने प्रोवाइड करी उससे कम रिलीज हुई, डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन। और लास्ट पॉसिबिलिटी कि अगर आपने जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी उससे ज्यादा रिलीज हो गई, तो नेट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन। तो ये तीन तरीके के सॉल्यूशंस पॉसिबल है लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस में। अब इन सॉल्यूशंस की डिटेल में स्टडी करेंगे, बट फॉर दैट स्टडी वी नीड सम टेक्निकल टर्म्स फर्स्ट। तो उसमें हम लोग सबसे पहले एक टर्म लिखेंगे वेपर प्रेशर। अपना हो सकता है गैस स्टेट में पहले से पढ़ा हो, बट मैं आपको पूरा फंडामेंटली समझा रहा हूँ व्हाट इज वेपर प्रेशर। हमने क्या करा, एक लिक्विड को पहले एक क्लोज कंटेनर में लिया, so if I'll take a liquid in a closed container, ये हमारा लिक्विड अवेलेबल है। अब लिक्विड में चूंकि इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो लिक्विड इवेपोरेट करके ऊपर वेपर क्रिएट करेगा, दिस इज योर वेपर। अब जब ऊपर वेपर बनेगी तो थोड़े टाइम बाद वेपर का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, तो उसका मतलब एक एंड से इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, दूसरे एंड से कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। सो दैट मींस वी विल अचीव अ कंडीशन इन व्हिच लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kp बोल रहे हैं। ठीक है, अब प्योर लिक्विड जो है उसका एक्टिव मास कांस्टेंट होगा, तो सिंपली Kp की वैल्यू जो आएगी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर लिखेंगे,
और जो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है इसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अभी टेक्निकल टर्म में डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ आपके, बट पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने क्या करा, एक क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड लिया, लिक्विड को अलाउ करा वेपर बनाने के लिए, तो लिक्विड के ऊपर वेपर बनी, पहले एवेपोरेशन से लिक्विड से वेपर बना, एवेपोरेशन से लिक्विड से वेपर बना, फिर क्या हुआ, वेपर को हमने कंडेंस कराया, वेपर जैसे जैसे वेपर का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे करके वेपर कंडेंस होना स्टार्ट होगी, एक एंड से एवेपोरेशन चलेगा, दूसरे एंड से कंडेंसेशन चलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, टेक्निकली हम लोग उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इस फिजिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो लिक्विड, जो वेपर लिक्विड कॉलम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर जाएगा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp, वो Kp जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एग्जैक्टली वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वही जो उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर होगा उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन दिस टर्म, if we take a liquid in a closed container, if we take a liquid in a closed container, if we take a liquid in a closed container, if we take a liquid in a closed container, then first due to evaporation vapor will form. If we take a liquid in a closed container, then first due to evaporation vapor will form. After some time condensation will start. After some time condensation will start. After some time condensation will start. Okay, and then a point will come where rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, and then a point of time will come when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. Rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. It is known as state of physical equilibrium. It is known as state of physical equilibrium. ठीक है, अगले पॉइंट पे लिखो, in the state of physical equilibrium, 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 the pressure due to vapor over liquid column, in the state of physical equilibrium, the pressure due to vapor over liquid column, in the state of physical equilibrium, the pressure due to vapor over liquid column is known as vapor pressure. In the state of physical equilibrium, the pressure due to vapor over liquid column is known as vapor pressure. ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? अब आप इस चीज को ध्यान से समझ लो। अब आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अब आपको क्लियर हो गया कि वेपर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, और जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन
टेम्परेचर, याद है, क्लियर? तो वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा केवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर and it is independent of the volume of the container and the pressure inside it. ये चीज अलग से नोट डाउन कर लीजिए. So vapor pressure is vapor pressure depends on temperature and it is vapor pressure depends on temperature and it is independent of volume of the container. It is independent of volume of the container or pressure inside it. Vapor pressure depends on temperature and it is independent of volume of the container और प्रेशर इनसाइड इट. ये लॉजिक समझ में आ गया ना? हमने जब एक क्लोज कंटेनर में लिक्विड लिया तो लिक्विड के ऊपर वेपर बननी शुरू हुई. थोड़े टाइम बाद पहले इवेपोरेशन चल रहा था, फिर थोड़े टाइम बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ. जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो वेपर लिक्विड कॉलम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर. इन द स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम pressure due to vapor over liquid column is known as vapor pressure. ठीक है? अब liquid vapor equilibrium establish हो गया है तो उसका equilibrium constant अगर Kp मान लें, pure liquid का active mass constant होगा तो Kp की वैल्यू क्या लिखेंगे? partial pressure of vapor. तो ये vapor pressure जो है वो temperature dependent होगा क्योंकि equilibrium constant temperature पे depend करता है. जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम या उसके अंदर वाले प्रेशर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंडेंट नहीं होता है. इक्विलिब्रियम डिपेंडेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंडेंट नहीं होता है. So equilibrium constant is only depends on temperature. So vapor pressure also only depends on temperature. कंटेनर के वॉल्यूम और कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा उसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंडेंट नहीं होगी. ठीक है? अब अगर वो फैक्टर्स लिखें जिससे वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. कैसे पता चला? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम प्रोसेस कैसा है? हम लिक्विड को वेपर बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी हीट करने का प्रोसेस है. डेल्टा एच पॉजिटिव का केस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है, तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा. सो पहला फैक्टर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा. एक और तरीका होता है जिससे हम लोग अपने वेपर प्रेशर को अल्टर कर सकते हैं. दैट इज इफ वी ऐड a non-volatile solute, if we add a non-volatile solute to solvent, if we add a non-volatile solute to solvent, then इससे क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा. मैंने टर्म बोला नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसकी वेपर नहीं बनती. जैसे पेट्रोल है वो हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि आसानी से इवेपोरेट कर रहा है. स्पिरिट है, आसानी से स्पिरिट इवेपोरेट कर जाता है, वो हाई वोलेटाइल. जो सब्सटेंस आसानी से वेपर में कन्वर्ट होता है उसका वोलेटाइल कैरेक्टर हायर होता है, मींस इट हाईली वोलेटाइल सब्सटेंस. और अगर हम बोल रहे हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस तो होता है उसका वेपर नहीं बनेगा, सिर्फ ग्लूकोज. तो अगर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया तो उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. तो वेपर प्रेशर ऑल्टर करने के हमारे पास दो मेन टेक्निक्स आ गई. पहला, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा. दूसरा, अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई सबको? टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा और अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. क्लियर? इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए. दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट. वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, फटाफट एक लास्ट पॉइंट और ऐड करना है, बॉइलिंग पॉइंट. So write down boiling point is the temperature at which boiling point is the temperature at which
boiling point is the temperature at which vapor pressure becomes equal to external pressure. Boiling point is the temperature at which vapor pressure becomes equal to external pressure. और external pressure के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 180. कॉमनली हम लोग 180 प्रेशर पे इस चीज को चेक करते हैं, अदरवाइज एक्सटर्नल प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है. So vapor pressure is the temperature at which boiling point is the temperature at which vapor pressure is becomes equal to external pressure, और external pressure के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 180. ठीक है, तो उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि अगर हम वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे किसी भी लिक्विड का, अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हायर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप लोअर हो जाएगा. वेपर प्रेशर हायर मतलब बॉइलिंग पॉइंट लोअर वैल्यू. तो अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हायर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप लोअर वैल्यू आएगी, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर वेपर प्रेशर लोअर वैल्यू हुई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर वैल्यू. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो वी विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके आगे का कंटेंट कवर करेंगे. बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस का डिटेल स्टडी करेंगे. अब तक आपको वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और जो हमने सॉल्यूशंस के बेसिक कैटेगरी बताई वो सीखना है. आपके साथ एक होम असाइनमेंट शेयर किया हुआ है, उसको सॉल्व करिएगा पूरा. नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे कंटेंट कंटिन्यू करेंगे. इज दैट क्लियर?